Check, 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 check. Check, 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 check. Let me write here कि भाई some technical issue आ रहा है. Okay, start. Okay, perfect. Okay. Hello, check, 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 check. Okay, भी ठीक है. Students, can you see me, hear me properly? Is this audible, visible? Let me know. Students, can you see me, hear me properly? Can you let me know? Audible, audible, Devansh, catastrophic, Krish, all and audible, clear, visible. Perfect, perfect. Good evening, my मेरे प्यारे जोश वाले students. Good evening. चलिए. So let us continue our journey. And first of all, if you're not part of this channel, you have to subscribe to it right now. Devansh, I reply to all your messages, beta. You send me so many messages. I might have missed one message, but focus here, बच्चे. I personally reply to everybody, and I reply to you also. Maybe एक आध message और करा होगा रात को late night miss हो गया होगा. I'm really sorry. I'll reply after this. But let's continue with our journey here. Please, everybody, subscribe to this channel. This is free, and this is where you get a lot of information regarding Olympiad. So, how much is the Josh? I need a thumbs up and I into this for this video as well as in the chat box here so that I can know by how much is your energy level right now. आज वीक क्विज नहीं करूंगा मैं. Saturday की क्लास है which is marathon. It is all about the PYQs and that is where I have planned so many of quizzes. है ना. आज पूरा हम कोशिश करेंगे that we complete the refraction because refraction has refractive index, Snell's law and lot many things. And that is why. चलिए. So obviously आपका प्लान पक्का है कि भाई फोड़ना है. तो this is our agenda for today. We are going to talk about refraction of light and the agenda is to complete this chapter in one full class. That's all. And we'll try to finish in 90 minutes or less, but ज़्यादा लगा तो ज़्यादा time ले लेंगे. My name is Bhavdeep Sethi and I have done my masters from IIT Bombay and I convert physics haters into physics lovers. And I always say फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बहुत बुरी तरह से बदला लेगी, बहुत जोर जोर से बदला लेगी आपसे, है ना. सपनों में आएगी, डराएगी, एग्जाम में बदला लेगी. सो नेवर मेमोराइज फिजिक्स, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. Now, why accelerate physics? Obviously, for two reasons. Firstly, quickly finish the CBSE syllabus so that you can go deep into the concepts, and that might include Olympiad study, JEE study, NEET study. And obviously, जब तक आप basic understanding नहीं कर लेते, आप deep नहीं जा सकते. And the problem is that the school is going to take months and months to cover these concepts. So what we are doing is in one lesson, we are going to complete everything for that chapter, the full chapter, so that you can go in details after that. So accelerated physics in a nutshell, one chapter in one YT session. There are 4 chapters, namely refraction, reflection, and then we have electricity and magnetism. And we are going to finish that in 4 sessions, that is 4 days, and there are 2 extra sessions for PYQs, free for all. There is no catch, no hidden terms and conditions. Then there is theory, practice problems, PYQs, lot of things, homework with each session. आज थोड़ा late night आपको homework मिलेगा, but that is guaranteed for sure. So take this pledge, and usually when I started my classes, I used to say like this, है ना? So pledge that I will not memorize ever, no memorization in physics and maths at least. And that actually pledge has to be taken for all subjects because subjects like social science, you really don't have to memorize many of the things there. You can relate them with your day-to-day surroundings
and the civics, geography, history, they actually are more conceptual. So, but for now, we'll start with physics and maths. And if you are hesitating to take this pledge, then this class is not for you. I'm not being rude here, I'm being very honest. If you find taking this pledge difficult, then today's class is useless for you. It is going to be a waste of time. Sure? Okay. So with that, our agenda is refraction of light, Snell's law, then spherical lenses and ray diagrams and lens formula, pretty much similar to what we studied in mirrors day before yesterday. And before yesterday, if you were not part of the class here, we completed in 1 hour 40 minutes, roughly around that, and same thing might be here as well. So let us start with a plain slide board here. And where is my writing pad? कहाँ है भाई writing pad? हाँ जी, writing pen, not pad. So what is refraction? Refraction is the bending of light when it changes medium. So basically light travels in air, in vacuum, in glass, in water, in transparent media. But when it changes one medium to another, it will bend, it will change its path. And that changing of path is what we call refraction of light. So basically, in simple words, wherever there is a change in medium, there is a change in speed, and that change in speed causes the bending of light. So let's look at it. The way it works is more like, first of all, let's start with what is refractive index. So speed of light is different in different mediums. So let's say vacuum. So vacuum or air, we take it as same, almost same. So the speed of light is 3 times 10 to the power 8 meter per second. So light travels with this speed in vacuum. Air में it is a little lesser than this, but we say okay, क्या फर्क पड़ता है यार, थोड़ा बहुत तो चलता है. अब वाटर की बात करें तो वाटर में स्पीड कम हो जाती है. The water way, it becomes roughly 2.25 times 10 to the power 8. Now again, when we are writing these values, these are average values, because you have to understand when we say water, कौन सा पानी? भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, के बोतल का, के है ना, के नाली का, के नदी का, के समुंदर का. There are different speeds and different qualities of water, but roughly in that range. And again, when we are saying glass, I mean, what kind of glass are you talking about? Different glasses have different speeds, but we are talking about averages here. So roughly in this range is the speed of light in glass. Now you do not have to memorize this. You do not have to memorize this. Whenever required, they will give you. ये number आपकी life में सबसे important number है. When you go to higher grades and you really study physics to that level, you will see this number is controlling your life more than anything else. So this number is your life number, and this cannot be forgotten. इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको समझना है, इसकी respect करनी है ना. This number is not just the speed of light. This number denotes a lot of things actually, है ना. And again, we are not talking about it for now, but yeah, है ना. अब एक कॉन्सेप्ट है डेंसर एंड रेयरर. तो डेंसर एंड रेयरर में क्या मतलब है? वो डेंसिटी, वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वाली बात नहीं हो रही, वो मटेरियल डेंसिटी होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी है. सो इफ यू आर सेइंग ऑप्टिकली डेंसर, सो ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर इज द वन विद स्लो स्पीड, है ना. We are covering everything, don't worry about it. We'll cover 100% syllabus. It might take longer time, that's okay. And then optically rarer is the one with the fast speed. And again, you have to understand these are all relative, है ना. क्योंकि आप अगर देखो कि अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, कुछ डब्बे थे मेरे पास यहाँ पे जो इधर उधर हो जाते हैं कई बारी, खो जाते हैं, मिल जाते हैं. चलो एक बड़ा डब्बा ले लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं. तो अगर मैं डब्बों की बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई ये भारी है कि हल्का है ना. तो आई मीन इट्स ऑल रिलेटिव, बिकॉज इफ आई कंपेयर विद दिस वन, आई से दिस इज हल्का, इससे कंपेयर किया तो हल्का है. और अगर मैंने इसको, है ना, कुछ और हल्का फुल्का है यहाँ पे, ये है, या पेन ले लेता हूं, तो कंपेयर टू दिस पेन, दिस इज भारी.
compared to this dabba, this is halka, and it's all relative. So again, जिस दो मीडियम को आप कंपेयर कर रहे हो उनको आपस में देखोगे तो जिसमें स्लो स्पीड होगी वो डेंसर है, जिसमें फास्ट होगी वो रेयरर है. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, वैक्यूम और वाटर को, so if I compare these two, I'll say okay, this is faster. So this one is let's use some other color maybe which is visible, maybe green is visible here. So this one will be rarer. दिख रहा है क्या वहां से, है ना? So it's all relative. This is rarer and this is denser. So what I'll do is I'll use the white color only. White ही ठीक लग रहा है मुझे यहाँ पे भी. So this one is denser. Oh sorry, what am I saying? So this one is rarer. So this one is rarer and this one is denser. But अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो उसमें ये फास्ट हो गया, अब ये रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया, है ना? So when you're comparing which medium has a faster speed, that's called the rarer medium, and the one with the slower speed is called the denser medium. So if you compare these two, this one is slower, so this is denser compared to this. But if you're comparing these two, then this is rarer compared to glass, and glass is denser. यहां तक क्लियर है आपको, है ना? ग्रीन कलर थोड़ा डल है तो सफेद रहने देते हैं. Now मोहित शारदा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि स्पीड चेंज ही क्यों होती है. Now I'm not going to talk in that direction right now because again our agenda today is to complete the syllabus of 10th board exam, है ना? And that is why. But keep up the curiosity. In upcoming classes when we study a little higher, we'll do that. सफेद बेस्ट है, ठीक है, अच्छी बात है. तो अब क्या होगा, देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए कि अगर मैं देखूं, और अभी हम क्या पढ़ते हैं 10th में, हम पढ़ते हैं वॉट मतलब क्या हो रहा है. वाई का आंसर सब जगह नहीं मिलेगा. एंड अगेन एज ए सिर्फ फिजिक्स को रट्टा नहीं मारना, तो सिर्फ फिजिक्स को समझना है, पूछना भाई का क्या क्यों. बट दिस इज एक्सेलरेटेड फिजिक्स, एंड एक्सेलरेटेड फिजिक्स इज ऑल अबाउट लेट्स फिनिश द सिलेबस देन वील गो डीप इनटू दैट. तो अभी हम क्या का आंसर ले लेंगे काफी जगह, क्यों का आंसर शायद बाद में आएगा. तो अब मेरी बात सुनिए, लाइट जा रही है, ये ग्लास है, ग्लास में स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी. तो लाइट अगर जा रही है, सपोज लाइट जा रही है ऐसे, तो लाइट फास्ट थी और यहां स्लो हो गई. तो इसको थोड़ा सिली सा लगेगा समझने में जिस तरह मैं बता रहा हूं, बट दिस वे यू विल अंडरस्टैंड मोर, यू विल रिलेट मोर. अब लाइट जा रही है, बोले कि मैं स्लो हो गई हूं यार, अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. तो लाइट क्या करेगी, लाइट ने मोशन चैप्टर पढ़ा था, एंड लाइट नोज स्पीड is equal to distance over time. So light को पता है भाई time is equal to distance over speed. तो लाइट बोल रही है स्पीड कम हो गई तो डिस्टेंस कम कर दूं तो टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा ना. डिस्टेंस अगर उतना ही है, स्पीड कम हो गई, कम नंबर से डिवाइड किया तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो लाइट बड़ी सियानी है ना. लाइट विल से आई विल चेंज माय पाथ एंड टेक अ शॉर्टर राउट. एंड अगेन क्यों हो रहा है उसका आंसर हायर ग्रेड्स में आएगा. सो व्हाट विल नाउ हैपन इज लाइट विल टेक अ शॉर्टर राउट in order to compensate for a speed which is lower. So if you were to draw normal here, this is normal 90 degrees line, you will actually see light is bending towards the normal. And this is what is memorized by your school teachers. When the light goes from rarer to denser, it bends towards the medium. It bends towards the medium. It bends towards the medium. So think about it. It bends towards the medium so that, or towards the normal medium बोल रहा हूँ. It bends towards the normal. और उसको इस तरह से विजुअलाइज करो भाई, रेयरर से डेंसर मतलब कम स्पीड करनी थी तो उसका रास्ता ही छोटा कर लेती हूँ, शॉर्टकट मार लेती हूँ, है ना. एंड देन अगेन इफ देयर इज अदर साइड एयर, सो इट विल से अब मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब मैं, है ना, लंबा रास्ता ले सकती हूँ. सो देन व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर,
denser to rarer, it bends away from normal. And again, we'll see this from the Snell's law also. यहां तक clear है तो एक है ना बता दीजिए मुझे. So when the light travels from rarer to denser, मतलब fast to slow medium, it will bend towards the normal, and from denser to rarer, it will bend away from the normal. And again, how much does it bend is controlled by the Snell's law. तो अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है refractive index, है ना, refractive index. So what is refractive index? Refractive index actually tells us the speed of light relatively कितनी है speed of light, है ना. So refractive index. So refractive index is denoted by Greek letter mu. ना मेरी हैंडराइटिंग कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, पर ये यू नहीं है, ये म्यू है, बिल्ली वाला म्यू म्यू. हाँ, it's a Greek letter mu, and this is used to denote the refractive index. So what is refractive index? So refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a given medium. प्रियांशु नायक बेटा आप जो लिख रहे हो वो गलत है. जो प्रियांशु ने लिखा है, थैंक यू प्रियांशु फॉर राइटिंग, वो सीबीएसई की हर बुक पे लिखा है, हर स्कूल टीचर वो पढ़ाता है. वो स्नेल्स लॉ सबसे गंदा तरीका पढ़ने का. आज जो मैं स्नेल्स लॉ आपको पढ़ाने वाला हूं, आप देखोगे उससे आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है. और ये जो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू है, इसको पहले आप उठा के खिड़की के बाहर फेंक दो. मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने सीबीएसई की बुक में डाला है उसको. सबसे गंदा रद्दी फॉर्मूला ही है. अगर मेरे को एक फॉर्मूला को उठा के फेंकना हुआ तो मैं इसको फेंकूंगा, क्योंकि दिस इज द रद्दीएस्ट फॉर्मूला एवर क्रिएटेड. एंड वी विल सी व्हाई दिस इज रद्दी फॉर्मूला, एंड वील look at a new way over here. You will understand how. But for now, what is mu? Mu is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. कौन सा medium है ना. प्रियांशु ने फेंक दिया, किसी के सिर पे तो नहीं लग गया भाई. तुम तो एकदम एक्शन ले लेते हो यार, क्लास के बाद फेंक देते यार. चलो कोई नहीं, सब भगवान सबका भला करे. So refractive index of glass, let's say refractive index of glass will be speed of light in vacuum. अब अगर आपको C नहीं पता तो आप एक नाइंसाफी कर रहे हो यार. This C is used to denote the speed of light in vacuum. This is 3 times 10 to the power 8. This is the most important number in your life. You cannot take this lightly, है ना. But so always remember that. So speed of light in vacuum to the speed of light in glass. Glass क्यों? क्योंकि हम ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं. तो हम बोलेंगे भाई ये तो है 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. अब मीटर पर सेकेंड कट गए, 10 to the power 8 भी कट गए. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गई 1.5. किसकी? ग्लास की. इसी तरह मैंने कैलकुलेट किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो C divided by velocity in water, which is 3 times 10 to the power 8 meter per second over 2.25. अब याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो देंगे आपको. अब मेरे को अरसा हो गया पढ़ाते हुए, so these numbers are in my head, but you don't have to memorize. So मीटर पर सेकेंड कट गया, 10 to power 8 कट गया. So this is 4 by 3. This is the refractive index. भाई इस समय कौन कॉल कर रहा है यार? हाँ जी. So this is the refractive index of water. तो आप देखोगे कि जो डेंसर मीडियम है ना, ये हो गया 1.5. दिख रहा है उधर? हाँ दिख रहा है. और ये हो गया 1.33. तो आप देखोगे ये डेंसर मीडियम था ना. डेंसर मीडियम मतलब स्पीड कम है. इन दोनों को कंपेयर करें तो स्पीड कम है, नंबर कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी. सो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, रेयरर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी. यहां तक क्लियर है आपको? डेंसर मीडियम की ज्यादा होगी, रेयरर की कम होगी. क्यों? क्योंकि डेंसर की वेलोसिटी कम होगी, स्लो होती है ना, कम होगी, तो ओवरऑल नंबर ज्यादा हो जाएगा, है ना. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of a denser medium is going to be greater than refractive index of rarer medium. इसको याद नहीं करना, इसको तो चौथी पांचवी का गणित है यार. Yes, Mohit, if the speeds of light in two medium का plural media is equal, then they will have equal refractive index. Yes, definitely. है ना? Good question, by the way. So the question was, can there be two media which can have the same refractive index? अगर speed बराबर है तो refractive index बराबर है, बिल्कुल ठीक बात है. यहां तक क्लियर सबको? तो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसकी कम. सो दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट का मतलब कि भाई आप वैक्यूम से कंपेयर कर रहे हो उसको, है ना. अब एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसेप्चुअली समझिए. जो याद करना चाहते हैं आप गलत क्लास में आ गए हो. सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो याद कर लेते हैं रिलेटिव एब्सोल्यूट. तो रिलेटिव को ठीक से समझते हैं. सपोज ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी. पर्सन ए के पास 100 रुपए हैं और पर्सन बी के पास 200 रुपए हैं, है ना. पर्सन ए के पास 100 रुपए, पर्सन बी के पास 200 रुपए. अब मैं बोलूं हाउ वेल्दी इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए. हाउ वेल्दी इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए. बी ए के मुकाबले कितना ज्यादा दौलतमंद है. तो हम कहेंगे बी की बात हो रही है, उसको ए से कंपेयर करना है, तो हम कहेंगे बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात हो रही है, तो वील से बी की बात हो रही है, तो बी के पास 200 रुपए हैं, उसको कंपेयर करना है इससे, हम कहेंगे डबल दौलतमंद है. डबल डबल. यहां तक क्लियर आपको? बड़ा वेग सा एग्जांपल है, बट दिस विल एक्सप्लेन यू. सो हाउ वेल्दी इज बी कंपेयर टू ए. सो बी कंपेयर टू ए, बट हमने कहा व्हाट अबाउट ए कंपेयर टू बी विद रिस्पेक्ट टू बी. तो ए की बात हो रही है, ए बी के मुकाबले कितना है. भाई ए के पास तो 100 रुपए हैं कंपेयर टू बी, सो उसको बी से कंपेयर करना, तो जिससे कंपेयर करना होगा उसको नीचे लिख दूंगा, तो बोलूंगा आधा दौलतमंद है. ये एक वेग सा एनालॉजी है, बट डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि भाई b with respect to a will be b divided by a, but a with respect to b is a divided by b. But I've made lots of videos on HC Verma sufficient है कि नहीं. You see those videos. Today's agenda is very straightforward. We are trying to utilize 90 minutes to complete refraction of light. प्यारे बच्चों प्लीज, है ना. हाँ. So b with respect to a with respect to b. Now b respect, तो similarly अगर मैं बोलूं refractive index of glass with respect to water, भावना पे जाइए, याद मत करिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं क्या ये नहीं लिखूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ऊपर क्या नीचे क्या. ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास की बात कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू वाटर से कंपेयर कर रहे हो. पर अगर मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैं बोलूंगा भाई अच्छा वाटर की बात कर रहे हो आप, तो ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो जिससे कंपैरिजन होगा विद रिस्पेक्ट टू जो होगा वो नीचे आएगा. कॉमन सेंस बात कर रहा हूं मैं, यहां पे कुछ भी आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं. तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब होता है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. इसको काफी बुक्स में लिखा जाएगा, और इट इज ऑल्सो रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ये दोनों एक ही बात है.
ये दोनों एक ही बात है, दो डिफरेंट तरीके लिखने का, आपको दोनों पता होने चाहिए, बिकॉज सम बुक्स विल से दिस, सम विल से दिस. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो राइट में एकदम जुड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, है ना. बोथ ऑफ द मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. दैट्स इट, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है. सुंदरम आई ऑलरेडी आंसर्ड बेटा. Sundaram ka hasi, I have made many videos telling what books are important, what are required, how to study HC Varnama. You can refer to those, beta. This agenda today is accelerated physics. We are trying to utilize 90 minutes effectively to complete this chapter. Love you, bache. So refractive index of glass with respect to water. सुंदरम, आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी जो लैंग्वेज आती है बेटा, मैं उसमें बता देता हूं. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. ਸੋ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है C डिवाइडेड बाय VG, है ना. दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. And refractive index of water is C divided by VW. अब ये algebra like fifth का गणित है. So this, when you do all that, you get VW by VG. Now this is what I was saying. Many students get confused. ऊपर क्या, नीचे क्या? ये simple maths है यार. यहां तक क्लियर बच्चों? आपको सबको क्लियर है? तो चलते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं. बताइए, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज. मैंने क्विज नहीं बनाए हैं, वीक क्विज में परसों क्लास में जब सैटरडे को आएंगे हम तब करेंगे. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या लगता है, ए बी सी और डी? बताइए जी. मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और नो यूनिट्स, है ना. इट इज नो यूनिट. इट्स अ नो ब्रेनर हियर. इट इज नो यूनिट, क्योंकि C डिवाइडेड बाय V, तो C की यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड कट गया. सो जब हमने कहा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो क्या वो ऐसा यूनिट में है कि CGS यूनिट में? भाई वो किसी भी यूनिट में चलेगा, क्योंकि इट इज यूनिटलेस, इट्स प्योर नंबर. चलिए जी. Find the refractive index of a medium in which the speed of light is 1.5 times 10 to the power 8. Agarwal beta, we'll start NSCP ke free sessions after we finish accelerated physics, which is probably next week. We should be able to wind this up, and then we'll start the theory sessions of NSCP. I'm eagerly waiting for that. I am myself waiting for that. ठीक से करिए बच्चों, इसको गलत नहीं कर सकते आप. इसको गलत करने का सोचिए भी मत. इनफ टाइम दे रहा हूं मैं. बियॉन्ड बुक्स ब्रिगेड, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. इस वेदांतु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. And also our English channel that we have started. So please go to that English channel also. Yesterday I made a very informative video there. If should you go for NSCP or NSCJS, that video is for 9th and 10th graders especially, because you have two choices. That video is not for students who are in 11th or 12th or in 8th grade. That video is especially for 9th and 10th. सो प्रियांशु कह रहा है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से ज्यादा हो सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, अभी बात कर लेते हैं. सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज दिस. सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम?
refractive index is c divided by speed of light in that medium. So this is 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये भूलने का पाप आप मत करिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर आपकी लाइफ का है। डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज गिवन एज 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कट गया, 10 टू पावर 8 कट गया, 3/1 1.5 is giving you 2. 2 is your answer, not 0.5. No, it is 2. 2 is your answer. 0.5 कैसे हो जाएगा? तो अब प्रियांशु की बात थी भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 1 से ज्यादा होता है, कम भी हो सकता है क्या? देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द मैक्सिमम स्पीड एवर पॉसिबल। उतनी स्पीड से भी कोई और नहीं चल सकता फोटॉन्स के अलावा। आई विल रिपीट व्हाट आई सेड, ओनली लाइट कैन ट्रेवल विद 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8, बाकी सब उससे धीरे चलेंगे। उससे धीरे चलेंगे तो ये नंबर हमेशा, वैक्यूम के अलावा ये नंबर हमेशा कम होगा इससे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 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 गोइंग टू बी 1 और ग्रेटर देन 1। यस देवांश गुप्ता, है ना, यू कैन से दैट, बट when you say that, it's more like you're quantifying that. It's basically density, optical density is more like a qualitative nature. So yes, you can say if refractive index is more, it is a denser medium, you know? But you can't say that if I increase the refractive index to twice, is density increasing. So density is more like, yeah, 1 से लेस नहीं होगा ना प्रियांशु, वही तो बताया अभी, सुन नहीं रहे थे आप? आपको बेंच पे खड़ा करने का की सजा दी जाती है। हाँ प्रियांशु, आप बेंच पे खड़े हो जाओ, क्योंकि बड़ा सिंसियर स्टूडेंट है, बुरा नहीं मानेगा, इसलिए मैंने बोल दिया। बाकी कई बार स्टूडेंट्स फिर नाराज हो जाते हैं, प्रियांशु नहीं होगा, मुझे पता है। तो v की जो वैल्यू है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन c। वैक्यूम है तो c बनेगा ना, वैक्यूम है तो c रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम करूं तो c/c 1 होगा, बट बाकी सब में v कम होगा, ये कम होगा, c ज्यादा होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन or equal to 1 for vacuum. Now, if you study the theory of relativity, Jason, which we are not studying, and one day I will start a course on that, you will see why nothing can travel with even the speed of light. उसको beat करना तो बहुत दूर की बात है ना? In quantum and string theory, we are not going to cover that, is much beyond the scope of it. Even though I love to teach that, प्रियांशु कितने यार तुम गलत स्टूडेंट हो, बेंच पे खड़े होकर भी हंस रहे हो तुम यार। चलो, अब मुर्गा बनाऊं क्या तुमको मैं? चलिए, so find the speed of light in a medium with refractive index of 2.4. जब बच्चे सिंसियर होते हैं, हर क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, तो उस क्लास में मुझे इसलिए मजा आता है क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स को डांट सकता हूँ। मुझे पता है कि भाई वो इंसल्ट फील नहीं करते, उनको मेरा नेचर पता है भाई, वो जानते हैं कि भाई भवदीप सर जब डांटते हैं, उस डांट में कितना आशीर्वाद छुपा होता है। टेक योर टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। So basically we are saying find the speed of light in a medium with refractive index of 2.4. So refractive index दे दिया, c पता है, v निकालना है। तो v is equal to c बटा mu, and c is 3 times 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है। सो दिस इज 5 बाय, है ना। सो आप ये देखिए ना, मीटर पर सेकेंड नहीं कटा अभी,
So 3 divided by 2.4 will be 1.25, isn't it? Yes, 5 by 4. 1.25 times 10 to the power 8 meters per second. Very easy concept out here. मीटर पर सेकंड क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं मीटर पर सेकंड? हाँ, है ना? तो मीटर पर सेकंड इस बार नहीं कटेगा ना, बिकॉज इसकी यूनिट ही नहीं है। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए थी, आ रही है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, 1.24 कैसे होगा ज्योति? देखो 3 डिवाइडेड बाय 2.4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 30/24, और ये 6 5 और 6 4 6 5 6 4 so 5/4, to me it is 1.25 exactly. So now very good question coming from Vishal. Why refractive index is denoted by mu? I mean, it's a convention to use Greek letters, and they have chosen different letters as a convention. They sit down, the team sits down, and they standardize things. अब कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि भाई सर ये ग्रीक क्यों चूज करा, इंडियन लैंग्वेज चूज कर लेते, एंड देन आई मेक अ वेरी पुअर जोक, एंड डोंट गेट ऑफेंडेड, बट आई मेक क्रैक अ पुअर जोक सेइंग अगर ऐसा करते तो फिर हम लड़ने लगते भाई, पंजाबी के यूज करो, उड़िया के यूज करो, कन्नड़ के यूज करो, तेलुगु के यूज करो, तमिल के यूज करो। तो उन्होंने कहा चलो यार फॉरेन से इंपोर्ट कर लेते हैं। वेरी पुअर जोक, आई नो दैट, but just to keep the light mood on here, let's go to the next question. Okay ji. So speed of light in water is 2.25 times whatever, and glass is this whatever. Find the relative refractive index of water with respect to glass. वाह वाह, इसे कहते हैं copy paste without applying any brains. I duplicated this slide. ये सारा कुछ खुद टाइप करता हूं by the way. So इसको मैंने डुप्लीकेट किया, ऊपर चेंज करा, इसको चेंज नहीं करा। तो परफेक्ट एग्जाम्पल टू मेक थिंग्स वायरल है ना, भवदीप सर की क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देखिए जी, कैसे पढ़ाते हैं ये, है ना। कभी अटेंड मत करना इनकी क्लास, परफेक्ट एग्जाम्पल हियर। चलिए, तो भूल जाते हैं इन ऑप्शंस को, है ना, इन ऑप्शंस को भूल जाते हैं, और भूलने के लिए इनको डिलीट ही कर देते हैं ना, फिर स्पेस भी मिल जाएगा। माउस कहाँ है भाई? अब जब जब है अपने पास पावर्स, तो यूज किया जाए पावर्स को कि भाई इनको डिलीट ही कर देते हैं, है ना। जब टाइप किया था तो भाई पूरा ठीक से कॉपी पेस्ट क्यों नहीं किया आपने? एनीवेज दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, है ना। नकल के लिए अकल चाहिए। हाँ, तो अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज दिस, एंड इन ग्लास इज दिस। फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass. So what we tried to find here is relative index of water with respect to glass. So we'll say, okay, relative refractive index of water divided by relative refractive index of glass. So now there are two ways to do this question. You can say, okay, I know this value. I can find mu W by doing C by V. Do the same thing for finding mu G and then divide them and do that. But why? I mean, why would you do that? Because you can do it much easily by not even calculating. You can write it like this. Why not write it like this? Okay, by C by VW is mu W, and C by VG is mu G. And C से C कटा और तुनक तुनक हो गया, and this becomes VG by VW. VG by VW. So VG is 2 times 10 to the power 8 meters per second, and divided by 2.25 times 10 to the power 8 meter per second. Now again, visualize this as 200 by 225, 25 times 8 and times 9. So this is 8 by 9. It is not 1.1 like many of you are saying. No, it is 0.8888888888.
So this is going to be 0.8 recurring. That is the answer, and it has to be, because think about it, you're trying to find refractive index of water by glass. Water is a rarer medium. If it's a rarer medium, its refractive index is less. Less by more is less than 1. है ना? 0.8 recurring. क्लियर है सबको? जोश के साथ यस तो बोल दो यार. Guys, is this class 8? This is not any class specific. To be honest, we are doing a chapter of grade 10th board, but 8th, 9th, 10th, जिसको आने आ जाओ यार. 11th के students भी आते हैं just to brush up the concepts. We are not about any class. It's high class. भाई कौन सी क्लास के बच्चे हैं? हाई क्लास के बच्चे हैं जो कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, है ना? चलिए आगे चलते हैं. तो spherical lenses and ray diagrams. So let's talk about ray diagrams. हाँ बिल्कुल शुभजीत, thank you much बेटा. So Shubhajit is saying, does the refractive index depend on temperature? Yes, it does. It depends on few more things, but right now we are doing a simplified study, accelerated physics, refraction of light, 10th grade board syllabus. Once this is done, we do higher level study. We do NSEP because this is Vedantu Olympiad school. Yeah, we are going to do beyond books studies. अभी within books studies कर लेंगे, syllabus खत्म करेंगे, then we go beyond book. देवांश, अच्छा good question. मैंने कहा गुड बाय करके जा रहा है. मैं डर गया. मैंने कहा बच्चा कह रहा गुड बाय सर, नाराज हो गया. बोला प्रियांशु नायक को सर आपने बेंच पे खड़ा कैसे कर दिया? मेरा भाई है वो, उसकी इंसल्ट कर दी. हाँ. So spherical lenses and ray diagrams, है ना? So same thing as mirrors, nothing different here. So remember mirrors में a concave mirror is a converging mirror. A ray of light parallel to principal axis goes through the focal point. और convex में ray of light parallel to principal axis diverges and it looks like it's coming from the focal point. अब concave mirror और convex lens भाई भाई, convex mirror concave lens भाई भाई, भाई 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 बहन बहन बहन, जो भी मतलब दोस्त है ना? So concave mirror, convex lens go hand in hand. Similarly, convex mirror and concave lens go hand in hand. So similar to like ray of light going parallel to principal axis go through the focal point, इधर through the focal point इधर हो जाएगा. There will be two focal points क्योंकि light इधर से आ रही है तो उधर भी जा सकती है ना. So there are two focal points. Remember that in the case of lens there will be two focal points क्योंकि light ऐसे जाएगी तो ऐसे भी जाएगी. यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते ना, वहां से तो light reflect ही नहीं होती है. So in the case of lens, remember there are two focal points. And the ray of light going parallel goes duck, duck, duck. और इधर virtual focal. So real focus, virtual focus. Now in the case of concave, a ray of light going through the focal point becomes parallel. A ray of light going through the focus becomes parallel. Same analogy है, कोई फर्क नहीं है इसमें. इसीलिए मैं कहता हूँ mirrors और lenses साथ साथ पढ़ लो, सब एक साथ ही चलता है यार. हितेश ने जो स्टेटमेंट मारा है 100% ठीक है, वो पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है. क्लियर है ये पार्ट? क्लियर, इजी. और तीसरा फर्क आ जाएगा, उसमें क्या था, जो सेंटर से जा रही थी वो वापस जाती है. इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की नहीं बात होगी, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से बात होगी. फर्क देख लीजिए, बहुत बड़ा फर्क आ गया यहाँ पे. तो वहां पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी वापस जा रही है इधर, बट इधर जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, एक दो तीन फर्क देखिए हम यहाँ पे. एक तो दिस इज कॉल्ड पोल बट दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. फर्क है. और ये जो पीछे वाटरमार्क आप देखते हो, ये मत सोचो मैंने कहीं से चुरा ली है ये स्क्रीनशॉट, किसी का कॉपीराइट था. कॉपीराइटेड नहीं लेता मैं किसी का. दिस इज कॉल्ड एनसीईआरटी.
एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करते हो फ्री में, तो एनसीईआरटी अपना वाटरमार्क लगाता है, तो ये एनसीईआरटी का वाटरमार्क है। ठीक है, तो array of light, so let's revise that so that we are clear. So let's try to make some freehand lenses. So this is a lens. आह, क्या फ्री हैंड बनाया यार, मतलब कभी, सच में यार कभी घमंड नहीं किया, बट वाह, मजा आ गया, बचपन से आर्टिस्ट हूँ। हाँ, सो अब इसमें यहां पर एक फोकल पॉइंट होगा। पहली बात तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, नॉट टू बी रीपब्लिश, शायद देवांश वही लिखा होता है उसमें, है ना, एनसीईआरटी नॉट टू बी रीपब्लिश्ड, है ना, हम कोई रीपब्लिश थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यूज कर रहे हैं, कोई कमर्शियल यूज थोड़ी कर रहे हैं कि भाई उसको प्रिंट कर करके बेचना शुरू कर दिया। हाँ, तो यहां पर एक फोकल पॉइंट है, यहां भी एक फोकल पॉइंट है, तो दो फर्क अभी तक देख गए। पहला फर्क तो ये कि दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर नॉट पोल। सेकेंडली, देर आर टू फोकल पॉइंट्स। अब तीसरा एक बहुत बड़ा फर्क आएगा, वहां पर उसका डबल जो था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिखे, अनफॉर्चुनेटली इफ यू लुक एट द सैंपल पेपर्स ऑफ सीबीएसई लास्ट ईयर, वो इसको सी लिखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये सी नहीं है, ये 2F है। सी यहां हो सकता है, सी यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, सी हमको नहीं पता कहां होता है, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। when you study lens makers formula in grade 12 and when we start our NSEP classes, you will see where C is, but C is not this। तो वो पता नहीं कौन से महाअनुभवी हैं, है ना, who make those sample papers, है ना, वो सर गॉट स्केयर्ड। हाँ, है ना, तो अब, हाँ, so this is optical center, first difference, then two focal points instead of one, and then this is not C, this is 2F। अब इसमें क्या होगा, रेज बनानी शुरू करी तो अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो इट विल गो थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये पहली स्पेशल रे आपकी हो गई। फर्स्ट स्पेशल रे इज एनी रे गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकल पॉइंट। सेकंड स्पेशल रे would be a ray of light that is going through the focal point. I wish there were more colors I could use here, है ना, जिंदगी बोरिंग हो गई है, वही वाइट कलर ही यूज कर रहा हूं, बट दैट्स ओके, वाइट इज अ प्योर कलर, प्योरिटी लगती है इसमें। हाँ, सो अ रे ऑफ लाइट गोइंग थ्रू द फोकल पॉइंट, है ना, इसको अगली बार से इसका कलर चेंज कर दूंगा। मैंने क्या करा, एक टेम्पलेट बना लिया है हमेशा के लिए जिसमें मुझे अच्छा लगता है ये ऑरेंज, बट विद दैट द प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू यूज अदर कलर्स हियर, तो कुछ तो बदलाव लाना पड़ेगा। चलिए बदलाव लाएंगे। सो अ रे ऑफ लाइट गोइंग थ्रू द focal point will become parallel to principal axis। अब तीसरी स्पेशल रे, a ray of light going through the optical center, it goes undeviated, and again when we do NSCP level study we'll see नहीं ये सब approximations हैं, ऐसा थोड़ी होता है यार। देखो, अगर मीडियम बदल रहा है तो क्या मजाक कर रहे हो क्या आप, है ना, अगर आप एनएससीपी की तैयारी कर रहे हो तो आप खुद सोचो, खुद अपने आप से क्वेश्चन करोगे, ये क्या मजाक चल रहा है क्या, ये एयर है, ये ग्लास है, और आपको वैसे जा रही है, नहीं ऐसे नहीं जाती, बट अभी के लिए 10th लेवल के लिए हम मान के चलते हैं, है ना। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी स्टडी at wrong kind of approximations here because, you know, because of the obvious reasons that, but that's the reason। ये क्लियर आपको, है ना। सो ग्लैम ने कुछ लिखा और अपना वर्ड वापस ले लिया, देवांश आपने भी कुछ लिखा, आपने अपने शब्द वापस ले लिए। वो बोलते हैं जबान से निकला हुआ शब्द और तीर से, कमान से निकला तीर वापस नहीं आते, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ एनेबल कर दिया यार, है ना। बोलते थे, हमने बचपन से सुना था, मुंह से निकले शब्द और तीर, कमान से निकला तीर वापस नहीं आते, पर हमें थोड़ी पता था टेक्नोलॉजी यहां पहुंच जाएगी। ओके, अब
रे डायग्राम्स बनाएंगे हम। तो वही चीज है जो हमने पहले करी थी मिरर में, सेम चीज है, और हम लैब में भी गए थे उसमें। इसमें भी जियो जेब्रा में आप जाइए, हो सका तो अभी चलते हैं लैब में, कोई नहीं तो चलते हैं, है ना। So now let's say there is focal point here, then there is 2f here, ये C नहीं है, and when we use lens maker's formula, not the lens formula, I'm talking about lens maker formula. Lens formula अलग होता है, lens maker formula अलग होता है ना। तो they are two different things. So now यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, नीली बना देता हूँ, दिख रहा है क्या वहां से? नहीं दिखेगा यार, ये कलर चेंज करना पड़ेगा यार। अब तो ठीक है। तो ये मेरी ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्पेशल रे भेजूंगा, यहां से एक पैरेलल भेज दूंगा। पैरेलल भेजी तो वो फोकल पॉइंट से निकल गई। फिर मैं एक फोकल पॉइंट से भेज दूंगा। एक बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि एरोज नहीं बनाते हैं। एरो बनाओ, एरो ना बनाना पाप है ना। सो नाउ दिस इज योर इमेज, सी हाउ easily you can draw the ray diagrams. है ना प्रियांशु, थैंक यू बेटा, है ना। everybody you can search for GeoGebra simulation convex lens. So now you can see if the object were here between f and 2f, a real enlarged image is formed beyond 2f. है ना। So this is very similar. एक मिनट, एक काम करते हैं, इसी स्लाइड पे एक बार पैटर्न देख लेते हैं। पहले इसमें पैटर्न देखेंगे। सो पैटर्न क्या है? पैटर्न वही है जो हमने वहां देखा था, वही पैटर्न यहाँ पर है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे, आपकी लाइफ में इतना इजी लगेगा ना सब कुछ। अब देखिए, यहाँ पर फोकल पॉइंट था, यहाँ पर सी था, बिल्कुल वैसी ही कहानी यहाँ पर होने वाली है। आपको एक बार अगर मिरर समझ में आ गया तो लेंस और मिरर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। I mean, obviously there are differences, but conceptually अगर आप देखोगे तो आपको रिलेट करोगे, आपको इजी लगेगा। अब इसमें पैटर्न क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यहां पर छोटी इमेज बनती है, रिमेंबर। सो वी सेड इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, you will get a smaller image here, and exactly same will happen here. If there is an object beyond 2f, you will get a small real inverted image between f and 2f. बट इसमें रियल उस तरफ बनेगी ना। इधर क्या था, रियल का क्या मतलब है, रियली में लाइट रेज मीट कर रही थी, तो इधर तो रियली में मीट करने के लिए उनको उधर मीट करना पड़ेगा ना। अब what the pattern was, as this goes towards the mirror, this goes further away and starts growing. Remember that? So if you were to draw this here, the image would be growing here. When it is here, it is here. And exactly same thing would happen. Exactly same thing would happen here. कहाँ गए भाई? ये delete नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। Same thing will happen as you go further towards the lens. This will go further and start becoming bigger. So at the point when this is at 2f, जब C पे था, C पे बनी थी, 2f है, तो एग्जैक्टली 2f पे बराबर बनेगा। और जब आप आगे आ जाओगे और दूर और बड़ा होता जाएगा। यहां तक ठीक है? मैंने इग्नोर नहीं किया सुजवल कुमार, आपको क्या मैं आंसर दूं? आप कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस मच नीडेड, एक्नॉलेज बच्चे। वी आर ट्राइंग टू यूज 90 मिनट्स ऑफ आवर प्रेशियस टाइम टू फिनिश दिस चैप्टर। तो जो मोमेंट आपको मिल रहा है इतना बढ़िया 90 मिनट्स में एक चैप्टर करने का, है ना, तो आपको मैदान मूवी मैंने लगा दी यहाँ पे। आपने कहा नहीं मेरे को तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखनी है। मैं कहा चलो बड़े मियाँ छोटे मियाँ लगा दी। किसी ने कहा मैं मैदान देखनी है। अरे भाई जो मूवी लगी है पहले उसको देख लो ना, उसके बाद दूसरी देखेंगे फिर। मैं किसी मूवी की एडवर्टाइजमेंट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग। सो नाउ लेट्स गो टू लैब, है ना, लैब में चलते हैं। सो बाय द वे आई डोंट वॉच मूवीज, सो आई डोंट नो, आई मीन आई जस्ट हर्ड अबाउट देम। तो यहां पर जो प्रियांशु ने लिखा वो हम लिख देते हैं, जियो जेब्रा सिमुलेशन
कॉन्वेक्स लेंस, है ना? है ना? सुजवल कुमार कह रहा है सर आई वाज रिमाइंडिंग यू। हाँ जी, सुन लिया भाई, सुन लिया। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये मुझे ठीक लग रहा है। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, तभी तो मूवी में मजा आएगा। फुल स्क्रीन चलाओ सर मूवी। चलो देखो मैदान में, आ जाओ मैदान में। सो नाउ दिस इज एफ, दिस इज 2f, दिस इज एफ, दिस इज 2f। मतलब एफ जो है 10 सेंटीमीटर है, 2f 20 है, एफ 10 है, 20 है, तो ये बराबर होंगे बाय द वे। अगर ये 10 है तो ये 10 होगा ना, दोनों साइड बराबर होगा। सो फहमद बेटा, इन अ रियल इमेज द रेज ऑफ लाइट रियली मीट, ये रियली मीट कर रहे हैं। वेरी फास्ट टाइपिंग सर। अब मैं उसमें कुछ सेकंड्स लूंगा बताने के लिए कि मैं जिस जमाने का हूं, उस समय कंप्यूटर नहीं थे। उस समय वो रेमिंगटन का टाइपराइटर आता था, खट 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 खट। तो जब मेरा 9th के एग्जाम खत्म हुए, 10th के स्कूल, हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था इमीडिएटली शुरू कर दे, हमें छुट्टियां देते थे, गर्मियों की छुट्टियां जिसे कहते थे, समर ब्रेक। अभी समर ब्रेक क्या होता है यार? समर ब्रेक इज अबाउट कि भाई समर ब्रेक क्या होता है भाई? होता ही नहीं, उसमें होमवर्क होता है। हमारे टाइम पे नहीं होता था समर ब्रेक। ना टीवी, ना मोबाइल, ना होमवर्क, क्या करो? तो भाई जाकर बगल में टाइपिंग सेंटर था, वहां जाके मैंने खट ASDFGF सेमी कोलन LKJHJ ऐसे सीखते थे हम लोग। आई डोंट नो इफ इट इज स्टिल वैलिड नाउ, वो ASDFDF है ना, सेमी कोलन LKJHJ, वो कट 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 पूरा हफ्ते भर तक एक ही लाइन टाइप करते थे। हाँ, लाइट ऑफ कर दो, बत्तियां बुझा दें। नहीं, बत्तियां बुझाने से नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्रीन का रिफ्लेक्शन है। नहीं, ये कहाँ का रिफ्लेक्शन है? ये कहाँ से आ रहा है ये? अगर मैं बत्ती बुझा दूंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं भी नहीं दिखूंगा। ऐसे कर दूं, है ना? ये दिखा देता हूं भाई, कोई भूत प्रेत आ गया तो मैं भाग लूंगा यहां से। सो नाउ दिस इज एफ, दिस इज एफ, दिस इज 2f, दिस इज 2f। अब नाउ यू कैन सी दिस इज, है ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट, and when the object is beyond 2f, image is formed between f and 2f, and that's smaller real image. As I will bring object closer, you see how image will go further away and start growing. ओए, ये क्या हुआ? एक ही होया जी। हाँ जी, अच्छा ये बड़ा भी हो जाता है ऐसे? अरे वाह जी वाह, ये सही चीज है। हाँ, तो अभी रिफ्लेक्शन अभी भी सामने स्क्रीन का ही आ रहा है, बट आई थिंक इट इज बेटर नाउ। सो व्हेन यू लुक एट दिस 2f, it is at 2f exactly. Now when I bring it further closer between f and 2f, it will go further away from 2f and it will become bigger. Now this table is something to memorize in your books, but you should not be memorizing. You know, you make your own pattern here. Look at this. And then when it is between these two, you see how virtual images form. Remember in the case of concave, when the object is between f and pole, there's a virtual on the other side, and exactly same. Okay, when it is between f and optical center, there's a virtual large image. This is the case for magnifying glass. क्लियर है भाई दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों? हाँ, ध्रुव चौधरी, that's what I was talking about. Once the accelerated physics is over, I am going to start NSCP के as much sessions as my time permits. भाई मुझे तो डर लग रहा है यार, मैं तो लाइट ऑन कर रहा हूँ, ऐसे थोड़े यार। अब आप बोलोगे सर सिर के बल खड़े होके पढ़ाना शुरू कर दो, तो मैं ऐसे थोड़ी आपकी हर बात मान लूंगा। थोड़ा बहुत ठीक है, कंसिडर कर लेता हूँ मैं भी, है ना? चलो, चलिए आगे चलते हैं, है ना? तो अब ये थोड़ा बहुत एकोमोडेशन हो जाता है, पर ये थोड़ी आप बोलो सर उल्टा खड़े होके पढ़ाओ, लाइट बंद करके पढ़ाओ। हाँ, चलो, सुजवल कुमार, इंटरफेरेंस, सुपरइम्पोजिशन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, all this will be part of your wave optics. And I promise, once we are done with accelerated physics for 10th grade, I'm starting as many sessions. I cannot promise कि मैं पूरा NSCP करवा दूंगा आपको, कोशिश पूरी रहेगी यार, है ना? कोशिश रहेगी जितना करा सकूं YouTube पे उतना करा दूंगा।
And now an object is placed between f and 2f in front of a convex lens, then the image will be real between f and 2f, virtual between f and 2f, real beyond 2f, virtual beyond 2f. क्लास लंबी जा रही है, आपका जोश एडमायरेबल है. Subhajit says, are we using the principle of reversibility of light ray, which says light ray follows the exact same if we, yes. वहां वो मिरर में किया था ना हमने, जब हमने फोकल लेंथ से लाइट गुजारी थी. हाँ. So an object is placed between f and 2f in front of a convex lens. So there is a convex lens, there is f, there is 2f, then there is f. आप लोगों ने तारीफ कर दी थी गुड फ्री हैंड की, तो अब मेरी नजर लग गई, अब गंदा बन गया. So between f and 2f, so when it is f and 2f, it's going to be real beyond 2f and large. See, lens formula, lens formula. Lens and magnification formula go hand in hand with mirror formula and mirror magnification formula. Symbols वही हैं. So ये है mirror की दुनिया. So ये है mirror की दुनिया. और ये है lens की दुनिया. Very similar dunya with a little difference here. So mirror formula goes like 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. And the lens formula goes like 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. अब ये माइनस क्यों आएगा, बट जब डेरिवेशन करेंगे जब देख लेंगे. Concave lens exactly behavior जैसे like convex mirror. It will always form a small and virtual image. Now magnification की बात करूं तो magnification की definition है height of image by height of object. That's the definition, right? When we compare height of image and height of object, that ratio by common sense gives me magnification. So ये थोड़ी change हो जाएगा, उसकी definition थोड़ी change हो जाएगी ना, कि भाई magnification is the ratio of height of image to height of object. It remains same over there. But change आएगा यहाँ पर, बदलाव तो लाना पड़ेगा. यहाँ पर माइनस v by u था, उसने कहा यार तुमने यहाँ प्लस का माइनस कर दिया तो मैं माइनस का प्लस कर दूंगा. बस ये फर्क है, ये देख लो, बस ये दो फर्क है. एक तो यहाँ प्लस था तो वहां माइनस हो गया, या माइनस था तो वहां प्लस हो गया. सर, इज एनी कोर्स विच इज रिकॉर्डेड क्लास ऑफ फुल सिलेबस ऑन वेदांतु नॉट ऑन वाइट टू? हाँ, वेदांतु में है रिकॉर्डेड, लास्ट ईयर का 2023 का एनएससीपी कोर्स है रिकॉर्डेड, अवेलेबल, एंड इट्स अवेलेबल फॉर चीपर प्राइस because it's recorded, so you can buy that. It's very, है ना, effective. Many students have purchased that also, so you can purchase that one. But with that, you don't get the doubt clearing and all those things that come with it. हाँ, चलिए. ओके, बट which one? एनएससीपी का बता तो रहा हूँ. एनएससीपी 2023. आप जाइए वेदांतु में, चलिए साथ में ही चलते हैं. अब हम साथ में ही चलेंगे, हम साथ साथ हैं. So go to vedantu.com. Vedantu.com आ गया, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया वेबसाइट. कोर्सेज में गया, कोर्सेज में यहाँ कहीं ओलंपियाड लिखा होता है, यहाँ कहीं ओलंपियाड होता है. ये ओलंपियाड देखिए, थर्ड कॉलम में आप देखोगे ओलंपियाड है. ओलंपियाड में ये सारे फुल मैथ मास्टरी, आईएसआई से सारे 2024 के हैं. मैथ मास्टरी है, मैथ मास्टरी है, फिर एनएससी जेएस है, एनएससी जेएस प्राइम है, एनएससीपी 2024 रिकॉर्डेड. जो लाइव चल रहा है वो ये है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ. 8th ग्रेड टू 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, ये लाइव है. एनएससीपी मॉड्यूल 2 मैकेनिक्स 2 लाइव, या फिर मॉड्यूल 2 लाइव एंड मॉड्यूल 1 रिकॉर्डेड. बट इफ यू स्क्रॉल अ लिटिल डाउन,
This is recorded. It says 2024 का recorded, but it actually is the classes that were conducted last year. है ना, तो वो रिकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगी. एंड द प्राइस विल बी लेस ऑल्सो. देख, मेरे को पता नहीं कितने का है. सपोज 10th ग्रेडर का देखूं मैं. So yeah, this is very cheap. With the coupon code, you're getting for 1350. While the one that I'm teaching live, that is 2000 minus 200, that is 1800. तो यहाँ 500 रुपए कम है आपके, है ना? Yes. And then no, that is for one module I'm talking about. वो मेरा one module का 2000 minus 10% है ना. ये तो पूरा कोर्स आपको 1350 में मिल रहा है भाई. I was comparing apples to oranges. So uncomparable. This is the full course you're getting for 1300 रुपए, है ना. That was one module. हाँ हाँ, फर्क तो है भाई. तो चले फिर आगे. नो जो सो देवांश, मैंने आपको बोला मैं टेलीग्राम पे रिप्लाई करूंगा. आप समझते नहीं हो. आप भी बेंच पे खड़े हो जाओ. अभी आप खड़े हो जाओ. हाँ, तो यार जब आप रिकॉर्डिंग भी लोगे वो भी लोगे ना, तो यू हैव टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस एज दे आर गोइंग. But during weekends, you watch some of the recordings. But that means some extra effort, obviously. And that's what most of the students do. है ना? हाँ, तो अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग ही चाहिए तो आप ये ले लो. नहीं, फिर डाउट सॉल्विंग नहीं होगी इसमें बेटा. देखो, हर चीज नहीं मिलेगी ना फिर. हाँ, वो नहीं होगा फिर उसमें. उसमें अगर आप लाइव वाले में लोगे, you'll be part of Telegram group where students help each other also. So mirror formula से, ये मिरर नहीं है, ये लेंस है. वो देखो कॉपी पेस्ट वाली बात आ गई ना, मैंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया. सो लेंस फॉर्मूला से डर नहीं लगता सर, साइन कन्वेंशन से लगता है. सो साइन कन्वेंशन तो जैसे मैंने मिरर में कहा था, एक ही बात है कि भाई this side is positive, this side is negative, this is positive, this is negative. Something you have already studied, है ना, in your 5th grade, 4th grade, 6th grade. This is the sign convention. भाई origin पर है, origin से right में positive, left में negative, positive, negative. So it's exactly the same. And then again, बस इतना ही नहीं, तीन बातें और. So तीन बातें और क्या है? Number one is the device is always at the origin. Remember that we covered this in mirror also day before yesterday. Device at origin. So जब आप लेंस की बात करो, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, that has to be at the origin. Secondly, your object should be on the left hand side. आप बोलो नहीं मेरा लेंस है, मैं राइट में रखूं, और रख लो, लेकिन कन्वेंशन ब्रेक कर रहे हो. So if you give that solution to anybody else, that anybody else will really get confused. So convention is put the object on the left, and the third one, as we discussed, कि object has to be erect. सीधा रखना है, upright रखना है. उसको योगा करते हुए लेंस के सामने नहीं खड़ा होना कि भाई मैं उल्टा खड़े हो जाता हूँ. So object has to upright, सीधा रखना उसको. So these are the three more conventions that you follow, and that is all. And so let's quickly recap what we did. So we did, there is U, there is V, there is focal length, there is height of image, and there is height of object. So U is always negative. U is always negative. जहां रही बात V की, थोड़ा सा फर्क अब यहां पर आएगा कि अगर यहां पर रियल इमेज बनती है ना, यहां पर रियल इमेज बनती तो V नेगेटिव हो जाता. बट इधर अगर रियल इमेज बन रही है तो V पॉजिटिव हो जाएगा. बट अगेन द साइन कन्वेंशन इज नॉट ब्रोकन स्टिल, because anything measured on the left hand side is negative, anything measured on the right side is positive. But think of it, the difference is really huge. In the case of mirrors, real images will have negative V. In this case, real images will have positive V, and vice versa. So this can be anywhere positive or negative, and depending on where the image is formed. Focal length, same thing है कि positive for convex and negative for concave. Now height of object is always positive क्योंकि उसके सामने योगा नहीं करना. Remember, height of object is always positive. सर मेंटी क्विज है क्या? अभी नहीं है भाई, नहीं है. होगा जिस दिन उस दिन कर लेंगे.
हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग में उल्टी इमेज है कि सीधी इमेज है ना, जैसे डिपेंड करेगा। अरे कोई नहीं, सॉरी नहीं, सॉरी जो सॉरी बोलने चलते तो बेंच पे खड़े हो जाओ, सॉरी क्या होता। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, है ना। So an object of height 4 centimeters is placed at a distance of 60 centimeters from a convex lens of focal length 20 centimeters. Find the position, size and the nature of image. सॉरी मतलब आधा सॉरी थोड़ी मजा आता है कि भाई आधा सॉरी बोल दिया। सॉरी बोलना है तो बेंच पे खड़े हो जाओ, नहीं तो सॉरी मत बोलो, पढ़ाई पे ध्यान दो। दैट इटसेल्फ इज सॉरी। है ना, सीधी सी बात है भाई, अगर आप सॉरी फील करते हो तो आप पढ़ाई करो, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। सिर्फ कॉम्प्लेक्स फिजिकल फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कैसे करें? फॉर्मूले तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होते, फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है। जिस तरह से मैं डेरिवेशन कराता हूं, आई नेवर डू एनी डेरिवेशंस मोर देन 5 लाइंस। 5 लाइंस तो मेरी बहुत हार्ड लिमिट होती है, 3 लाइन 4 लाइन, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5 लाइंस। ये क्लास कब एंड होगी? जब तक आप में जोश है। बट मैंने 7:30 का टारगेट रखा था। चलिए, सो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, एक रफ स्केच बनाकर। आप हमेशा एक रफ स्केच बनाओगे और उस क्वेश्चन को करोगे तो इजी लगेगा, विजुअली समझ में आएगा, गलतियां दिखेंगी और अपने आप ही आंसर चेक हो जाएगा 100% मार्क्स के लिए। सो यू ऑलवेज स्टार्ट बाय मेकिंग एफ एंड 2f। है ना, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, क्योंकि अरे यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। ये कैसा है? ये थोड़ी अलाइन होती है, मेरे को नजर लगी है यार, उस समय इतना अच्छा मेरे से लेंस बना था, आपने नजर लगा दी है, गलत है यार। So this is f and this is 2f. So what they're saying placed at 60 centimeter from convex lens of focal length 20. So ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, ये 40 है, and they're saying it's placed at 60 centimeters. तो क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है? मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है, तो एक्सपेक्टेशन लिखते हैं कि I'm expecting a real image, inverted image, small image and between 20 to 40 के बीच में आनी चाहिए, है ना, उसका डिस्टेंस 20 to 40 के बीच में आना चाहिए। So then you start writing the variables. तो उत्सव जैसे लिखते हैं ऐसे U V F H O और H I। U is 60 but no it's not 60, it's -60। जब आपने बना लिया तो आपको दिख जाएगा ना, नेगेटिव होता है। फोकल for 20 but it's a convex so 20। height of object 4 सीधा होता है ये +4। and then you start using the length formula, 1 by f is equal to 1 by v and remember this minus 1 by u, length formula है। so 1 by f कितना हो गया? 1 by f is 1 by 20, so 1 by 20 is equal to 1 by v minus 1 by -60, so that becomes 1 by 60। 1 by 60 में ऑलरेडी नेगेटिव था, या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। सो अब ये हो गया 1 by 20 minus 1 by 60 is equal to 1 by v। You take the LCM, LCM comes out to be 60, so 3 minus 1 is equal to 1 by v। So 1 by v is equal to 2 by 60, so 1 by 30, so 1 by 30 मतलब v आ गया 30, positive 30। So the number positive is telling me it's on the other side,
क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, आनी थी, है ना, रियल हो गया क्योंकि पॉजिटिव आई है, और v की वैल्यू 30 आई है, मतलब 20 और 40 के बीच में, वो भी एक्सपेक्टेशन मेरी फुलफिल कर दी इसने. Then we look for what about other things? Other things, okay, we go to the magnification formula. We say magnification is equal to height of image divided by height of object. And remember, there is no negative sign here. This is simply V by U now. So height of image is something I do not know. Height of object I know is 4. And V is how much? V is positive 30. And U is minus 60, negative 60. So this negative 1 by 2 times 4 is negative 2. So height of image is negative 2. Because height of image is negative, I know it is inverted. And because it is 2, which is less than 4, I know it is small. So this is how you do your questions systematically. How focal length is 20? बताया ना, focal length 20. हाँ, है ना? So this is a simple example to show how you should do systematically. You can do any question like this. अब हम अगर देखें एक और चीज इसमें, है ना, एक क्वेश्चन और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ये वाला, है ना, ये इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले ये समझते हैं. यू हैव ए कॉन्वेक्स ऑफ, कॉन्वेक्स व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ. नहीं तो ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये फिर हमेशा, है ना, गलतियां सुधारनी चाहिए हमको, बैंडेड थोड़ी लगानी है उस पर. कॉन्वेक्स लेंस, हाँ, बैंडेड लगा दी थी मैंने. हाँ. Convex lens of focal length 20 centimeter. Where should you place an object to obtain an image double its size? तो है क्या मेरे पास, ये है 20 focal point 40 2f, 20 focal point 40 2f. आपके पास ये है ना, पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है भाई डबल साइज चाहिए. तो इन दोनों के बीच में अगर मैंने रखा तो मुझे पता है डबल साइज की इमेज बन सकती है. But many students do this and they end the question. No, you should not end the question here because they never told you the image is real or virtual. एक तो सिनेरियो आपका ये हो सकता है, और एक और सिनेरियो आपका ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ब्लू यूज करूं, क्या यूज करूं, ब्लैक यूज कर लेते हैं, हाँ, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया तो इमेज वर्चुअल बड़ी यहां पे भी तो बन सकती है. सो यू हैव टू सॉल्व टू सिचुएशंस हियर. One is going to be you're putting between these two and you solve for this, but the other situation can be you solve for virtual. Now this is an homework that I would like all of you to do. ठीक है, कैसे करोगे? इसमें आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट अगर x है तो हाइट ऑफ इमेज -2x होगी. ध्यान से फिर से, if the height of object is x, this is 2x but -2x. और इस केस में if this is x, this is positive 2x. So you solve for these two. I am waiting for your answers in the Telegram comments. उस वीडियो के कमेंट में आपने डालना है. जेसन, डिड यू अंडरस्टैंड बच्चे? क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्वाड्रेटिक कैसे बन जाएगी, लीनियर बनेगी प्रियांशु. If you want, we can solve it now for one of the cases. So do the other case. Let's do that. So क्या पता है, क्या पता करना है ना? तो मेरे को f पता है बस, और कुछ नहीं पता. मेरे को सिर्फ f पता है. f इज इक्वल टू, मैं व्हाइट वाला केस कर रहा हूं, ब्लैक आप कर लेना. f इज इक्वल टू +20, मेरे को ये पता है. और मेरे को पता है कि अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज x, अगर ये x है तो ये -2x है. अब सॉल्व करते हैं. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता.
No, there is still homework, Jason. I'm solving the white case, you solve the black case. है ना? इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता. देयर आर टू वेरिएबल्स, आई नीड टू इक्वेशंस फॉर दैट. तो सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी? सेकंड इक्वेशन आएगी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से. हमको पता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाय u. ये मेरे को पता है. सो हाइट ऑफ इमेज कितना है? -2x. सो आई विल से -2x divided by height of object, which is x, is equal to v by u. Now don't think there are three variables now, क्योंकि ये x कट जाएगा ना. So now how beautifully you're getting v is equal to -2u. See, देखिए आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो आप v की जगह -2u यहां पे रख दो. तो 1/20 is equal to -1/2u minus 1/u. अब इसमें से एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम आएगा 2u and this will be -1 minus 2 is equal to 1/20. देखिए कितना ब्यूटीफुली हो रहा है सब कुछ. अब ये आएगा -3. पूरा ही सॉल्व कर ही देते हैं ना, जब कर ही रहे हैं तो फिर इज इक्वल टू -3/2u. 2 से ये कटेगा तो u आपका आ गया -30. u आ गया -30. लेट्स चेक. अभी इस नोटबुक को मैं अपने टीचर को नहीं दूंगा, मैं चेक करूंगा खुद ही. u आ गया -30. डज इट मेक सेंस? यस, इट डज मेक सेंस. क्योंकि पहली बात तो u नेगेटिव आना चाहिए, दूसरा 20-40 के बीच में आना चाहिए. बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले हो गया. Now you will do the same thing for black one and submit the homework. The only thing that changes there is ये x है तो ये +2x होगा, क्योंकि ये x है तो +2x है. जब सब कुछ आप इस तरह से करोगे आपकी वैल्यू u नेगेटिव आएगी, बट इट विल बी बिटवीन 0 and 20. अगर 0 and 20 के बीच में नहीं आ रही है, then you have made a mistake. Now that completes your, the next thing. Now again, very quickly, common mistakes made in board exams by your दीदी भैया. Same mistakes. Mirror lens की mistake सबसे बड़ी common mistake होती है. Concave convex का आप ध्यान रखिएगा. अभी आपको पता है हो रहा है, लेकिन एग्जाम में ये सबसे बड़ी गलतियां होती है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूं. फोकल लेंथ वर्सेस रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस केस में यहां पर 2f पूछ लेते हैं कई बार. आंसर की यूनिट लिखना भूल जाते हैं. u कितना है? u 30 आ गया, u -30 आ गया. अरे -30 क्या, उसको सेंटीमीटर तो लिखो आगे यार, है ना. सो नाउ अगेन तालियां तो बनती हैं. क्यों बनती हैं? बिकॉज यू मास्टर्ड रिफ्रैक्शन इन वन क्लास, दैट टू विदाउट रट्टा. रटा नहीं है आपने. और इनमें से कुछ चीजें अगर रह गई होंगी, those will be covered during our revision class that is coming on Saturday. So please subscribe to this channel, subscribe to YouTube channel and then this Telegram channel, and also give a thumbs up to this video. यार मेहनत बड़ी लगती है. And I promise once we are done with accelerated physics, I'm going to start NSCP की theory classes also. But trust me when I say I'm really busy. So I will try my best to conduct as much as I can, but don't expect me. I'm not giving any false promises कि भाई आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा, वो नहीं हो पाएगा, है ना. I'm going to do as much as I can, trying my best, but पूरा सिलेबस NSCP का नहीं करा पाऊंगा. I will bring some theory classes, some PYQs and all that. I will do as much as I can, है ना. अच्छा, स्नेल्स लॉ रह गया. जेसन बोल रहा है सर आप झूठ बोल रहे थे, पूरा कराएंगे. पूरा तो नहीं कराया. आई एम वेरी सॉरी बेटा, क्लास अभी बाकी है. सो 5 मिनट में स्नेल्स लॉ कर लेंगे. 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. स्नेल्स लॉ इतना इजी है. सो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? जो आपकी बुक में रखा उसको उठा के फेंक दो, पहले तो फेंक दो उसको ना. तो स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ ये है, मेरे पास दो मीडियम है, एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, एक की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. दो मीडियम है, कौन सा डेंसर कौन सा रेयर मेरे को नहीं फर्क पड़ता. ये नॉर्मल है. नाउ वी नो द एंगल विल बी डिफरेंट, क्योंकि लाइट ऐसे तो नहीं जाने वाली, है ना. या तो लाइट टूवर्ड्स बेंड होगी या अवे होगी, कुछ होगी, है ना. फॉर नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट आई एम सेइंग दिस एंगल इज θ1 and this angle is something, let's say θ2, which is bigger. I don't care for now. So what is Snell's law? Snell's law is simply mu sine theta is constant. That is all. And I'm telling you students,
वो जो बुक में आपका दिया है ना, उससे अगर आप नीट और JEE के क्वेश्चंस करने बैठ जाओगे ना, आपको 2-2 3-3 मिनट लग जाते हैं कई क्वेश्चंस में। इससे 2 सेकंड में होते हैं। आई एम नॉट मेकिंग अप दिस थिंग, दिस इज रियली, आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस तरह से 2 सेकंड में होते हैं। अगर आप वो वाला फॉर्मूला लेके बैठोगे 2-3 मिनट लग जाएंगे। दिस इज द रियल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। व्हाट डज दैट मीन? म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट, मतलब म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। हो सकता है यहां पे एक और मीडियम मैंने यहां रख दिया, तो वहां पे थीटा 3 बन जाएगा। तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, चलने दो, आने दो, आने दो। म्यू 3 साइन थीटा 3, आपके पास 1000 मीडियम है, सब में म्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। अब कैसे? सपोज ये है मेरा एयर, ये है मेरा वाटर। देवांश बेटा मैं वही समझा रहा हूं, आप बोल रहे हो दोबारा समझाओ, दोबारा मैं एग्जांपल से करा रहा हूं, सुन लीजिए। सो यहां पर म्यू एयर कितना होता है? म्यू एयर 1 होता है। म्यू वाटर कितना होता है? म्यू वाटर होता है 4/3, सॉरी, पता है हमको, ये बात हमको पता है। अब यहां पर नॉर्मल बना दी मैंने कहा सपोज यहां पर 30 डिग्रीज पे लाइट जा रही है, 30 डिग्रीज। अब बोला भाई वहां पता करो, पता कर लेते हैं। बोलेंगे स्नेल्स लॉ जिंदाबाद। सो म्यू एयर टाइम्स साइन ऑफ थीटा आई, क्योंकि अभी आई है ना, ये यहां पे जो आई है बेसिकली दिस इज आई, एंड आर नहीं पता ना मुझे, आर नहीं पता। सो म्यू एयर टाइम्स साइन आई इज इक्वल टू म्यू वाटर। ना करिए। सो देयर वाज अ कैलकुलेटर हियर व्हिच आई कैन स्टिल सी, एंड आई एम गोइंग टू पुट दैट इन डिग्रीज। आपको आपको एग्जाम में यहां तक छोड़ देना है। आप बोलोगे आर की वैल्यू कितनी है? आर साइन ऑफ 3/8, क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है कैलकुलेटर्स। सो भाई, so we are showing 3 divided by 8 का arc sine, that is 22.02. So angle of refraction is 22.02. And this is as simple as what we have done here. Mu 1 sin theta 1 is equal to mu 2 sin theta 2. अब हम याद करते हैं ना, light will bend towards the normal, away from normal. उसको देख लेते हैं, उसको देखते हैं। मेरे को एक बात बताइए, अगर मैंने यहां पे डब्बे लगा दिए 4, कॉमन सेंस पढ़ाई करा करिए, कॉमन सेंस पढ़ाई। डब्बे लिख दिए 4। अब इस डब्बे में मैंने लिख दिया 10 और इसमें लिख दिया 20। मेरे को बाकी डब्बों में नहीं पता क्या है, बट एक बात की मैं गारंटी आपको देता हूं कि दिस डब्बा विल बी स्मॉल, और सॉरी दिस डब्बा विल बी बिग एंड दिस विल बी स्मॉल। अब इससे ज्यादा कॉमन सेंस की मैं क्या बात करूं आपसे यार? अगर आप कुछ चीज यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से और वो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, तो ये कोई बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, वहां छोटा करोगे, तभी काम चलेगा। ये कॉमन सेंस आपको समझ में आती है? अगर दिस इज स्मॉल सो दिस हैज टू बी बिग, एंड दिस इज बिग देन इट हैज टू बी स्मॉल। अब आपको ये भी पता है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम हैज टू बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। करके देख लिया था अभी कि उसकी स्पीड कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। सो अब मेरे को एक बात बताइए, अगर यहां पर रेयरर मीडियम है और यहां पर डेंसर मीडियम है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है म्यू रेयरर टाइम्स साइन थीटा रेयरर, थीटा आर लिख दो ना, थीटा आर, थीटा आर मतलब रेयरर में एंगल, शुड बी इक्वल टू म्यू डेंसर टाइम्स साइन ऑफ थीटा डेंसर। यहां तक क्लियर? यही तो स्नेल्स लॉ है। पर अब स्नेल्स लॉ तो ठीक है, पर मुझे पता है ये नंबर बिग है।
म्यू डेंसर बिग है, म्यू रेयर स्मॉल है। अब मैं अपनी कॉमन सेंस में गया, मैंने कहा ये नंबर स्मॉल था तो यहाँ बिग चाहिए, तो ये स्मॉल है तो ये बिग चाहिए मुझे, और ये वाला स्मॉल चाहिए। मतलब रेयरर मीडियम में एंगल बड़ा होगा और डेंसर में छोटा होगा। तो भाई अब तो कॉमन सेंस इससे ज्यादा मैं क्या चलाऊं आपके सामने, कि अगर ये रेयरर है, सॉरी, अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो व्हाट वी आर गेटिंग बाय आवर सिंपल कॉमन सेंस इज रेयरर में एंगल बड़ा होना है, डेंसर में छोटा होना है, तो यहां पर एंगल बड़ा होगा, यहां पर छोटा होगा। लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, and the same thing applies if the light were coming from denser to rarer, इट विल बेंड अवे। बट डेंसर में एंगल छोटा होना है यार, सिंपल है, इसको आप खुद एक बार एनालाइज करो तभी आप सीखोगे। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी करो, दिस सेशन इज फॉर स्टूडेंट्स who are willing to study physics फटाफट से, so that they can go to that level of saying I will crack JEE exam and get all India rank 1, or I will crack physics Olympiad, or I'll crack NEET exam। और वो स्टूडेंट्स स्पून फीडिंग नहीं करते, वो अपने आप सॉल्व करके देखेंगे, है ना। सो यू रियली हैव टू, है ना। चलिए, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब टू वॉट एवर, है ना। सो अगेन, फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू नो मोर अबाउट ओलंपियाड्स, आई विल टेक 2 minutes here, others can leave। सो बेसिकली अब क्या, ये तो हो गया, अब आप तैयारी करो ना IOQM की, इनमो की, NSCP, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, NSE JS, एंड वी ऑफर ऑल दीज क्लासेस, ध्रुव शाह, है ना। And by the way, I keep showing all these pictures, but think about this. Let me see if I have the names also. I don't have the names. No, I don't have the names. So, but our team, Indian team, is going to Georgia to participate in 13th European Girls Mathematics Olympiad. And I don't know if this picture is visible. So, and a proud moment for us. So our students are going to participate. Again, Aditi Avnish, they participated in chemistry and got silver medal in 2023. So we offer all these Olympiad courses. These are started in April. And as I was showing you, NSCP courses taken by me. I'm a physics teacher. So 6 to 7:30 p.m. Monday, Wednesday, Friday class timings होती है, 5 मॉड्यूल्स हैं, है ना। 18 मार्च को शुरू हुआ था, ओनली 2000 इज द प्राइस, बट इफ यू वांट रिकॉर्डिंग ऑफ मॉड्यूल 1 इट इज 500 मोर। इफ यू क्लिक ऑन द लिंक बिलो you will get 10% discount anyways, है ना। So yeah, these are the 5 modules। ये खत्म हो गया, ये चल रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम इज गोइंग ऑन। एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग, ये रिकॉर्डिंग लूंगा तो इसका कैसे, भाई आप उसकी रिकॉर्डिंग साथ साथ देखो, और यहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, वो है ना, मैं झूठी बात नहीं बोलूंगा, आपको मेहनत पूरी करनी है। इफ यू आर विलिंग टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, गो फॉर दिस, सब्सक्राइब नाउ, है ना। सो या, मेहनत करनी है, मेहनत के बिना नहीं। और मैं बोलूं भाई फीस लाओ आपको गोल्ड मेडल देंगे, वो नहीं होगा, नहीं होगा। So you have to be willing to work hard. So that this batch is for students who are willing to work hard. It's not for everybody, and that's why, see, the price has been kept so low. It's not about money. It's more about जिनको मेहनत करनी है आ जाओ. It's not anybody can join these batches. These are elite batches. Earlier we used to take entrance exam for this. Last year हम entrance exam लेकर ही इन batches में डालते थे बच्चों को. But then many parents and students said, ठीक है मेरा भी इतना level नहीं है, but I want to do that. And then we took away the entrance exam, and then we said, okay, anybody can come, provided you are willing to put extra effort. ठीक है, so with that, join this channel and subscribe to the YouTube channel as well. I'll be back with the marathon of PYQs on Saturday. So तब तक के लिए बेटा, bye bye. Keep up the high जोश, जोश कम नहीं होना चाहिए।